So, hello and welcome to Vice IAS Academy. So, I am a polity teacher. I will be continuing with the topics. Yesterday we have completed, we have begun Constitution and we started with the background. So, we'll continue from here. Why Regulating Act 77? Why Regulating Act? क्या बनाएगा? कुछ पढ़ा तुम लोगों ने कि कल जो मैंने बोला वही सुना? अच्छा, do your homework please. It's better you read and come in the class. तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए. You will understand it much better. There was one article in the Hindu yesterday. There's two good articles. One was related to a decade. This decade is the Indian decade. And another one is related to workforce, work done, unpaid work. Okay, women, household. This is a very frequent topic that is coming. Okay, and if not this year, in the next year, either in the mains, in the form of question, or else in the form of, we will see in the form of essay. दो में से कुछ एक आएगा. ठीक है, unpaid worker. Why unpaid worker? Unpaid work done by them. Do we need to monetize that? Monetize करने की जरूरत है उसे? ठीक है, then where is emotion? Where is emotion? Where is value? You cannot monetize everything, every aspect of human society. There is a counter argument on that. हर चीज को monetize नहीं कर सकते हैं हम लोग. Monetizing everything is an utilitarian principle. क्या है? Utilitarian principle है. You monetize everything. What does it mean? ये टर्म मोनेटाइज वो समझ में आया मुझे. ये बताओ कि मोनेटाइज यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो मोनेटाइज अगर हम कोई चीज करते हैं तो वेयर इज इमोशन? इट्स बेटर टू हैव अ सर्वेंट रादर देन हैविंग अ वाइफ. ना, सो एवरीथिंग, every aspect of human, that is the thing. Monetization का मतलब ही वही हो गया. You monetize the thing. When you start monetizing the thing, you are considering everything is on sale. That can be brought or sold like a market. Okay, in the market. Every action, so human, whatever the human are doing, it's like a labor. They are doing a labor. Now that labor is done by in the terms of values, in the terms of emotion, in the terms of human association. Okay? Okay? Now if you monetize everything, what will happen? The society will lose its most essential element, and that is emotion. वही lose कर जाएगा. ठीक है? Okay? What will happen in that case? तो उससे अच्छा उसे डिग्निटी दो. द कांट का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डिग्निटी. कांट का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डिग्निटी. इट्स बेटर टू गिव अ ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, दे शुड नॉट बी कंसीडर एज अ सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंडरी पर्सन इन द फैमिली. दे शुड बी कंसीडर एज अ इक्वल पार्टिसिपेंट इन द फैमिली. वो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, रिकग्नाइज करो ना करो, दैट इज अनदर एस्पेक्ट. ठीक है, उससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अब उसे इक्वल पार्टनर बना ले. ठीक है, ज़्यादा अच्छा है वो कंपैरेटिवली. बट गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया, ठीक है, पर्टिकुलरली एशिया, द पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है एशिया की, ये अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो इफ यू स्टार्ट मोनेटाइजिंग द थिंग, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ
तो लॉ बनाने की जरूरत क्या है? अगर कोई नहीं देता लेकिन ऐसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज अगर लॉ में है, वो चीज प्रूवन है कि वो इतना अर्न कर रही है, वो तो रिकॉग्निशन मिलेगी। एक चीज होगी ना, एक कांसेप्ट थ्योरी है, बस कहते हैं रिकॉग्निशन देंगे, डिग्निटी देंगे। एक तो चीज लॉ, है कि उसका you cannot have law on everything. That is the problem. You cannot have law for everything. It's the least law is the better governed. ठीक है? A society with the least law is the better governed. जब जहाँ पे कम लॉ होता है वो सोसाइटी कैसी होती है? बहुत एनलाइटिंग सोसाइटी होती है, उसे जरूरत नहीं है लॉ बनाने की। सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा होता है उनका कि उनको लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज एन एक्सटर्नल प्रेशर। इट्स बेटर यू हैव अ इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इंटरनली प्रेशर्ड हो आप कि नहीं ये नहीं करना, इंटरनली ऑब्लिगेटेड हो। ठीक है, हैविंग हाँ, तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, वो तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही वही है। इसी के लिए वहाँ पे गेटिंग 2-3 वाइफ रखना मतलब नॉर्मल, नॉट एट अ टाइम। एट अ टाइम तो किस्मत भी नहीं है। 2-3 टाइम मतलब टिल द टाइम दे डाई दे हैव 4 to 5 वाइफ्स। बच्चा जब तक ये बड़ा होता है, 5 से 7 साल का पहुंचता है, जब तक ये कॉन्शियस होता है थोड़ा सा, तो उसे पता चलता है कि द वन ही इज कॉलिंग मदर इज एक्चुअली नॉट हर बायोलॉजिकल मदर। उसकी माँ नहीं है, शी इज अ स्टेप मदर। ठीक है, सो it is one of the major reason why the Western society has a more problem of सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? डिवोर्स इज वन प्रॉब्लम। बच्चों के साथ में या इन जनरल लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है? है ही नहीं वहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, वो तो रहता है। मेंटल हेल्थनेस, मेंटल हेल्थ पता है बहुत वीक है वहाँ पे। दैट इज द रीजन साइकेट्रिक इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री इन वेस्ट। इसी के लिए वहाँ पे योगा बहुत फेमस है। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह बहुत फेमस है। फ्रस्ट्रेटेड पीपल, ओके, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई देयर इज अ मोर ड्रग एडिक्शन in the west among childrens because of the broken family. ठीक है, that is one of the most important reason that the elder citizens are abandoned and the children feel lonely. Okay, और क्या हो सकता है, और क्या रीजन है? that is the reason the society or the child's security is very poor as compared to India. ठीक है, चाइल्ड सोसाइटी कैसी है वहाँ पे? चाइल्ड सिक्योरिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, यहाँ पे उसी की वजह से इंडिया, विच इज द फॉलोइंग इंडिया और एशियन कंट्रीज, बिकॉज ऑफ द philosophical advancement, because of the emotional connectivity among the individuals, your near connectivity to the parents. ठीक है, immediate then father, then पूरा खानदान है तुम्हारा। ठीक है, joint family type. Joint family concept is a very good concept. Nuclear is a very broken concept. This has already came in the paper. ये सब ऐसे आ चुका है एग्जाम में in the last 5 years. You go and check the essay. So this is how you need to understand. Okay, fine. This is the problem. Now you monetize the one aspect. Where is that aspect? You monetize the human labor. I'm not telling they are not doing a labor. Some women might be doing it in the terms of emotions. Okay, consideration of responsibility. Okay, you cannot monetize that. And what will be the value? What will be the value of that? There is one more profession in West, the babysitting, childcare. There are two institutions very famous. There is third institution which is already there in the West. It is increasing in India nowadays. ये दो तो है. That is an outcome of nuclear family. Though that is a child care center, another one is babysitter. Okay, there is one more concept. One more that is booming. That is after death funeral. जो है इंडस्ट्री है वहाँ पे,
इंडिया में भी वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। वाई आफ्टर द मतलब तुम फोन करके बोल दो मेरे फादर मदर कोई डेथ हो गया, यू गो एंड टेल, वो आएंगे, वो कंपनी वाले बोलेंगे देखो भाई आपको डेथ हो गया, हम सारा काम कर देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे। ठीक है, 2 लाख 5 लाख जो भी है तुम्हारा, यू पे, विल डू द रिचुअल्स, विल डू द रिचुअल। दिस इज द बूमिंग इंडस्ट्री इन द वेस्ट, इट इज स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, चाइल्ड केयर, दिस इज द रीजन यू हैव इन योर सिलेबस सोशल जस्टिस। ठीक है, जो वेस्ट में जो लड़के रहते हैं, ठीक है, मतलब जो वहाँ जाके काम करते हैं, आईटी मोस्टली इंजीनियर्स, ठीक है, तो वो यहाँ के वहाँ इनकी फैमिली क्या होती है, यहाँ पे अबेंडेंट होती है, फादर मदर कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते, दे कम इंडिया, दे गेट मैरिड, दे टेक द वाइफ एंड दे वेल गो, या वहीं शादी करके रह रहे हैं। So this is the new element that entered in the society, Indian society. ठीक है, so think, थोड़ा सोचो कि क्या हो रहा है सब। बहुत अच्छा है, everything cannot be monetized, that is a problem, there is a reason, there is a difference between the growth and the development, the discourse between the growth and the development, that is a reason where there is a constant debate, either we need a growth or we need a development, अलग अलग सबका अलग अलग अपना अपना वो है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इज अ वेरी मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, we talk about only in the sense of income, okay, when we talk about development, so we talk about in the sense of overall development, human in connectivity। अगर ग्रोथ देखें तो मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा है, वेस्ट एशिया का ग्रोथ इज वेरी हाई, ठीक है, बट इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इट्स वेरी लो। नाउ दे आर स्टार्टेड रिफॉर्मिंग देमसेल्फ, वहाँ रिफॉर्म चलना चालू हो गया है। सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट मिला है वोटिंग में, सर्टेन सेक्शंस को मिला है वोटिंग राइट, ठीक है, तो अभी चालू हुआ है वहाँ। तो काइंडली थिंक इन अ ब्रॉडर होराइजन टू राइट योर पेपर, टू बी अ वेरी इफेक्टिव कैंडिडेट एस्पिरेंट, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे नहीं, मतलब 2023। ओके, सो 73 राइट, कहाँ देखिए 73 में, ये याद आया ना, कैसे याद रखना है इसे, 20 ईयर्स का 83 का बीच में अमेंडमेंट है, वो रेगुलेटिंग नहीं अमेंडमेंट है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, ब्रिटिश कंट्रोल स्टार्टेड। ओके, सो बंगाल का वॉइस नॉट वॉइस रो, अभी वॉइस रो कहाँ आया है, सो देयर इज वन अमेंडमेंट इन दिस, इसमें एक्चुअली में 3 अमेंडमेंट हुए हैं। ओके फाइन, 1978 1781 में एक अमेंडमेंट हुआ। प्रॉब्लम क्या था, वी हैव एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं था, ठीक है, और ऑलरेडी लोकल कोर्ट चल रहे थे, तो देयर वाज अ ह्यूज डिस्प्यूट। सो 81 हैज केम टू clearly demarcate jurisdiction, ठीक है, jurisdiction of Supreme Court, ठीक है, और सेकंड सोशल और रिलीजियस मैटर नेटिव इंडियंस का शुड बी प्रोटेक्टेड, वहां पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। After this, one more within the same year, we have one more important amendment, a very important amendment. It's India Act. It's India Act. It's India Act में
Again, there was a problem. Why Pitt's India Act has came? One of the major reason was the corruption. The Warren Hastings has been accused of corruption. ठीक है, उसके लिए बकायदा कोर्ट लगी. He was prosecuted in the British Parliament itself. क्योंकि हाउस ऑफ द लॉर्ड है, ठीक है, बेसिकली वही लोग देखते थे अभी तक 2008 तक. 2008 तक वही लोग सुप्रीम कोर्ट थे. देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटेन. 2008 में वो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, अलग से डिमार्केट किया गया उसको. ओके, हाउस ऑफ लॉर्ड जो थे, अपर हाउस, वही एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन वही करते थे. उसे प्राइवी काउंसिल कहते हैं, ठीक है, द प्राइवी काउंसिल. ओके, Pitt's India Act was one of the major reason to overcome the problems, corruption problems. Okay, it has demarcated, or in this what happened, there was one more body as introduced. ठीक है, एक body और introduce करी गई, that is Board of Control. Board of Control. Board of Control has 4 member. 5, 1 plus 4. They all will be appointed by British Crown. ठीक है, the one body was already functioning. एक body चीज already function कर रही थी, ठीक है, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये ऑलरेडी फंक्शन कर रही थी, ठीक है. इट वाज फंक्शनिंग सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, पहले क्या होता था कि इससे पहले सारे रिक्रूटमेंट सब कुछ यही करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अ न्यू बॉडी हैज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. नाउ सम इंपॉर्टेंट services has been taken out, like financial and military. Financial and military will be looked after by Board of Control. Financial matter or military matter, Board of Control देखेगा. Don't write, I'll make you write. Don't worry. ठीक है, फाइनेंशियल और मिलिट्री मैटर यही देखेगा. Okay, so this is the important arrangement that happened. Another one is, इसमें एक important element और है जो कि बहुत important है, that is possession of British, possession of companies territory, possession of companies territory. According to Act, now it is considered as a possession of British, in the British possession, not British territory. अभी तक British territory बाद में आएगा, possession under British. ठीक है, so this is the important amendment that happened in the Pitt's India Act. Now, next is one more amendment happened in 1786. ठीक है, 1786. Now at that time, who was the viceroy? Cornwallis. Cornwallis was the viceroy. Governor General. Okay. Now, what he required more centralizing power. Now over here there is a problem that one is actually Governor General. ठीक है, the 4 is different people. There is a problem that Cornwallis need a more centralization. Now you need a more centralization. That is 2 important aspects that you should be having with you. ठीक है, one is the revenue, that is finance, should be with you. ठीक है, if I want a complete centralization, तो revenue मेरे पास होना चाहिए. और दूसरा, अगर उस टाइम पे मिलिट्री है तो मिलिट्री का कमांड मेरे पास होना चाहिए, और आइदर एग्जीक्यूटिव है इन द मॉडर्न डे
पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अगर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए पूरा का पूरा, तभी मैं सेंट्रलाइजिंग पावर पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट डज इट सिग्निफाइज व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंस, तो फाइनेंस का इनकम मेरे पास, ठीक है। उस टाइम में मिलिट्री थी तो मिलिट्री का एक्सपांशन मेरे पास, ठीक है। इन द मॉडर्न टाइम एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मेरे पास, एग्जीक्यूटिव भी मेरे पास, तो एक्सपेंडिचर भी मेरे पास, दोनों ही चीज मेरे पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड बी ऑल्सो हैविंग सम लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव ऑल्सो। Okay, get it? So what he needed, Cornwallis said that I need for a more centralization power and for more expansion of British territories. Okay, I should be having both the institutes, the finance which is already with me. I should be also the commander in chief. So the military command or military control gets into my own hand, so that I can expand. He got it. But on the responsibility of everything that happened in India should be on his shoulder. ठीक है, British Crown agreed to that and they have given that power. Now this is the explicit beginning of centralization of power. और ये कंटिन्यू रहा कब तक है, 1857 58 में जब एक्ट आएगा तो वो अबॉलिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ 17. Now, another, there is one more thing, the power of veto. You know power of veto? Veto power पता है क्या होता है? हाँ, ओवर रूल करने की पावर, मतलब कोई भी पावर जो तुमने, मतलब तुमने बनाया जो लॉ या तुमने कोई डिसीजन लिया, आई हैव अ पावर टू ओवर रूल इट। ठीक है, ओवर रूल इट। तुमने कोई प्रपोजल दिया एज ए स्टूडेंट, बट बीइंग एज ए टीचर आई कैन ओवर रूल। ठीक है, दैट इज अ वीटो। नाउ अब क्या है कि प्रेसिडेंट, मतलब मॉडर्न केस में, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड इज नोन एज ए पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन आई से पोस्ट मॉडर्न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सब कुछ पोस्ट मॉडर्न में चल रहे हैं हम लोग, आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, 2030-40 तक पहुँचते पहुँचते हम कौन से पोस्ट में चले जाएंगे पता नहीं, but this is the postmodern world. Okay, we are already talking about fifth generation of society. Let's see what we are talking. The fourth industrial revolution क्या है? What is the fourth industrial revolution? Do we have a fourth industrial revolution or not? What are the first three? पहले तीन कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है? लिख लो, बताओ बाद में। What is the fourth industrial revolution? Constantly question are coming कि fourth industrial revolution क्या है? देखो, पहले तीन कौन से थे? ठीक है, चौथा क्या है? पांचवा क्या होगा? I'll give you a hint. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है? दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंटरनेट ऑफ थिंक पता है? हाउ डज द इंटरनेट ऑफ थिंक वर्क? इंटरनेट ऑफ थिंक पता है ना? ठीक है, क्या है? हाँ, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये पता करो, इसमें डेटा साइंस बहुत सारी चीजें उसी का पार्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग तो मेन एलिमेंट है उसका, मतलब सारे उसी पे ही चलते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। इंजीनियर है ना कोई इसमें? हाँ, किसके, इलेक्ट्रिक हो? हाँ, बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग। तुम्हें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं पता है? नहीं, लग क्या रहा था, मतलब कंफ्यूजन है, तब भी नहीं पता था क्या? मतलब क्या प्रॉब्लम कहाँ पे? एकेडमिक प्रॉब्लम पढ़ाने वाले में कि पढ़ने वाले में? दोनों में। वेरी गुड, ठीक है, वेरी स्मार्ट आंसर, दोनों में रहना चाहिए। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अवर एकेडमिक करिकुलम। ठीक है, हमारे एकेडमिक करिकुलम में प्रॉब्लम है ये, अदरवाइज इतने सारे डेटा साइंस के कोर्सेस प्राइवेटली नहीं चालू होते हैं। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ डेली करिकुलम। ठीक है,
क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड में होता है, कोई भी चीज को स्टोर कर देते हैं, उसे कहीं से भी एक्सेस दे सकते हैं किसी भी कोड से। तो एआई का मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो। हाँ, क्योंकि उसी के थ्रू एआई एक्टिव होता है, वो एक क्लाउड बन जाता है ना, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसे देते हैं। क्लाउड स्टोरेज वर्क्स क्लाउड होता है वो भी एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज। यस यस करेक्ट, एक्चुअली उसी पे बेस्ड ही है वो, क्लाउड पे ही बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। ओके, सो पावर ऑफ वीटो इज देयर, क्लाउड में इमेजिनरी वो होता है, क्लाउड मान लीजिए जिसमें ना तेरा सारा डेटा स्टोर है, फोटोज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो एक तरीके से क्लाउड होती है, यू नो यू ऑनलाइन स्टोर होती है। लाइक गिव इट अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आपका बिना ईमेल आईडी डाले चालू हो सकता है, ये सुनो, फंक्शन करते हैं उसको बिना एक प्रॉपर ईमेल आईडी दिए, कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। व्हेन यू गिव योर ईमेल आईडी, ठीक है, एवरीथिंग इज गेट कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी, ठीक है, दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। तो यू कीप ऑन अपडेटिंग दैट। तो तुम्हारा पहले क्या होता था, बहुत डर लगता था फोन घूमने का कि डेटा चला गया, अब दिक्कत नहीं है, यू कनेक्ट योर कॉन्टैक्ट विद योर ईमेल आईडी, सब कुछ वापस रिट्रीव होता है, दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स इट इज नॉट स्टोर ऑन योर हैंडसेट और डिवाइस, इट इज स्टोर इन द क्लाउड, ठीक है। यू हैव देयर ओन एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस है उसमें तुम्हारा, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट का ओवर राइडिंग पावर होता है उसके अंदर, ठीक है, कुछ सम एक्सटेंट तक के, दैट इज द रीजन। नाउ देयर इज अ, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये क्लाउड है, तुमने इसे दे दिया, ठीक है, ओके, इसने यहाँ से किसी ने एक्सेस कर लिया, ये ब्रीच हो गया, ठीक है। डेटा प्राइवेसी का इशू क्या है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहा है डेटा, यू गिव अ परमिशन टू सर्टेन स्टोरेजेस एक्सेस, उसमें क्या होता है, ऊपर से आएगी अगर एक्सेस डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, नहीं अभी कहाँ से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा डेटा कहाँ है, यहाँ है, तो हम क्या 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 परमिशन देते हैं इसे एक्सेस करने का, जितने हम परमिशन देते हैं उसे उतना वो एक्सेस करता है, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम यही है कि ये जो इतना एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, उसका यूज कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है एक्सेस, प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेरा, पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरा, दैट इज अ प्रॉब्लम। पॉलिसी हाँ, आगे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेटमेंट, ओके। सो वीटो पावर, दे कमांडर इन चीफ हैज अ वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर का इमरजेंस यहीं से होता है इंडिया में, ओके। वीटो पावर का इमरजेंस लीगली, ठीक है, इन अ कोडिफाइड फॉर्म। अर्लियर भी वीटो पावर क्या था, देखिए राजा महाराजा वही करते थे, वीटो ही करते थे, और कोई काम थोड़ी था उनके पास में, ठीक है। तो वीटो पावर का जो इमरजेंस है वो यहीं से होता है, मतलब बाय द लॉ, ठीक है, प्रॉपर कोडिफिकेशन ऑफ इट। So this is what happened in 1773. Then comes (1793) Regulating Act, Charter Act, सब अमेंडमेंट है, सब अमेंडमेंट है, 81, 86 सब कुछ अमेंडमेंट है, नहीं पिट्स भी अमेंडमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। पिट्स जो है एक्चुअली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, तो लॉज आएगा, हाँ, ठीक है। चार्टर एक्ट जब बोलेंगे, जब वो चार्टर रिन्यू होता है, मतलब वो कंपल्सरीली रिन्यू होना है, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, वो भी एक्चुअली चार्टर ही है। 1793 चार्टर है, ठीक है, उसको आना ही है, बाकी उसके बीच में अगर कोई लॉ आता है तो ऑप्शनल है, वो आए नहीं आए जरूरी नहीं है, पर 1793 इज एक्चुअली कंपल्सरी, बिकॉज रिन्यू करना है ना वहां पे, सो इट गॉट रिन्यूड, ठीक है। कितना टाइम मिला फिर से, 20 years अगेन, ओके। कमर्शियल प्रिविलेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये याद रखो, कमर्शियल प्रिविलेजेस जो था
Commercial privileges is for 20 years again. Okay. What is importance for this act? What has given this act? There should be a Crown's approval. Okay. Crown का approval. Crown का approval किसमें? On any decision of either you talk about Governor General or ये along with him he is also a Commander in Chief. ठीक है, Commander in Chief. So Crown approval is compulsory now. पहले compulsory नहीं था, यहाँ पे compulsory हो गया. ठीक है. Presidency of that is Bombay and Madras. ठीक है, Madras और Bombay. इनका legislative power क्या हुआ? Legislative power went to the, गया कि नहीं गया? किसके पास? गवर्नर जनरल के पास. Went to गवर्नर जनरल. ठीक है, that is गवर्नर जनरल. जो बंगाल में बैठा है गवर्नर, that is known as गवर्नर जनरल, not of Bengal. ठीक है, वो लक्ष्मीकांत ने गलत दिया है. Is actually a governor general. ठीक है. Okay. Then what we have? One important thing happened. There was a separation of power. Separation of power. एक important चीज हुई. Separation of element of separation of power initiated here. तो पहले कहाँ किया separation of power? Judiciary में और legislature. ठीक है. Actually में देखा जाए ना, so you see whatever you have today. ठीक है. Whatever type of constitution or political function that you have is actually British has taught you very gradually, but at the cost of very economic drainage के cost में सिखाया है सब कुछ. Okay, we'll see to it. जब तुम 1947 तक पहुँचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सारी चीज़ें वाकई उन लोगों ने सिखाया है, धीरे धीरे कैसे डिफरेंशिएट होना. तो पहला सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ दिखता है. Judiciary has been separated from legislature. Okay. Then एक important है company. That is not important for you. Company allowed to get a personal personal permit allow किया कि वो natives को भी दे सकते हैं या किसी Europeans किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है. That is allowed. So this increases the private trade of the officers who are stationed in India. ठीक है. This is important for our political purpose, polity purpose. Now they have to be paid from, that is home government. The entire machinery, ठीक है, entire machinery should be paid by Indian revenue. This continued till 1919. ठीक है, 1919 तक के कंटिन्यू था. जो एक्टिविटी कहाँ होती थी? ब्रिटेन में होती थी, रिलेटेड टू इंडिया. जो भी एक्टिविटी ब्रिटेन में हो रही है रिलेटेड टू इंडिया, दैट एक्टिविटी शुड बी पेड बाय द इंडियन रेवेन्यू. दैट गॉट डिसकंटिन्यूड आफ्टर 1919 एक्ट. ठीक है. तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दे स्टार्टेड गेटिंग पेड फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. तो लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत होता था. गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1880. ठीक है. फर्स्ट टाइम द कंसिडर एज अ ब्रिटिश टेरिटरी. The word British territory has been used first time. ठीक है, British territory. Okay. One important, Governor General
was made as the Governor General of India. Why? Why India, not Bengal? वेरी गुड. तो ये जो ब्रिटिश टेरिटरी वर्ड यूज करोगे, एक तो हेड चाहिए ना, ठीक है, तो इसके लिए इसको कहा गया. ओके, गॉट द पॉइंट. दैट इज द रीजन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1333 में बनेगा, सॉरी. तो ब्रिटिश पोजीशन कब आएगा? नहीं नहीं, ये 33 का है, सॉरी, डोंट गेट कंफ्यूज. ये 33 का है. ब्रिटिश पोजीशन जो है वो 33 का है. ये इसमें नहीं है. 33 विल स्टार्ट अगेन, 13 स्टार्ट अगेन, 33 इसके बाद. ठीक है. 13 में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ था, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी. ठीक है. ट्रेड मोनोपोली हैज बीन अबॉलिश्ड. ठीक है. एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना. ट्रेड विथ चाइना, व्हाई? Why China was so important for Britain? Tea? नहीं. Opium, very good. Trade with opium. That is the reason वहाँ पे opium war हुआ है. ठीक है. Opium very important for medicinal purpose. ठीक है. कहने के लिए medicinal purpose है, but और भी activity है उसकी. ठीक है. And still opium is very important. दैट इज द रीजन. वहां का क्या है ये मालूम है? गोल्डन क्रिसेंट है या गोल्डन वो है? गोल्डन ट्रायंगल क्या है दोनों? ये गोल्डन क्रिसेंट कहाँ पे? ड्रग्स के लिए. थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, इंडिया, सॉरी, अफगान, पाकिस्तान, ईरान, इराक. ओके, फाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी. ड्रग्स का जो ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है यही है. वर्ल्ड के बेस्ट नोन प्लेसेस हैं, उसका ट्रांजिट रूट है इंडिया. दोनों का ट्रांजिट रूट है इंडिया. ठीक है. इसी के लिए ड्रग्स प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट वेरी हाई, वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ड्रग्स प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ड्रग्स का प्रॉब्लम इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द गोल्डन क्रिसेंट. और पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ गोल्डन ट्रायंगल. अफगान में उगता है and they are considered as with a very high quality. इंडिया में तो हम उगाते हैं. ठीक. गवर्नमेंट मुगल सराय में, सॉरी मुगल सराय में वो तो गवर्नमेंट सैंक्शन करके उगाते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस. ठीक है. मेडिसिनल पर्पस के लिए उगाया जाता है उसे. यूपी गवर्नमेंट उगाती है क्योंकि फर्टाइल ज़्यादा वहीं पे है. इवन मेरे ख्याल से पंजाब भी उगाता है. मलाना हाँ. मनाली के लिए तो बहुत फेमस है. मनाली नहीं, ऑस्ट्रेलिया. मनाली का सबसे फेमस पार्ट क्या है? सबसे फेमस क्या चीज़ है? प्रोवर्ब, माल रोड. क्या मिलता है सबसे ज्यादा? माल रोड इज वेरी फेमस इन मनाली एंड इट इज वेरी फेमस फॉर ड्रग्स. ठीक है. मतलब कहते हैं कि अगर मनाली गए और ड्रग्स नहीं गए तो किया क्या तुमने वहां जाके? दैट इज द प्रूफ. डोंट डू दैट. दैट इज द प्रूफ. Okay. So accept trade with China. Okay.
देन कमर्शियल प्रिविलेजेस हैज बीन अबेंडेड, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया की खत्म हो गई, ठीक है. दैट मीन्स अदर यूरोपियंस कैन कम एंड एंटर. वन important element happened over here. There was that is the challenges to Indian society, ठीक है. That is permission granted to whom? Missionaries. Now they come into direct conflict of Christian missionaries. Okay, they comes into the direct conflict of Orthodox section of the society. ठीक है. And they act as a facilitator or stimulator for whom? For the reformist. इंडिया के रिफॉर्मिस्ट के लिए वो लोग कौन थे? वो लोग स्टिमुलेटर फैसिलिटेटर थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इन सारे लोगों के लिए. ओके, तो ज्योतिबा फुले, इन सब के लिए क्या थे? वो फैसिलिटेटर थे, ठीक है. इसी के लिए तुम देखोगे कि मोस्टली क्रिश्चियन कॉलेजेस जो बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो पुराने हैं, वो बने हैं कहाँ पे? मोस्टली बंगाल और बॉम्बे के साइड में, क्योंकि इनिशियल रेवोल्यूशन यही दोनों प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था, ठीक है. इसीलिए बॉम्बे में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं और कॉलेज भी. सेंट जेवियर्स कॉलेज, यू नो सेंट जेवियर्स कॉलेज, इट्स इन बॉम्बे ऑल्सो और इट्स इन बंगाल ऑल्सो, ठीक है. तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दिस कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन and started a disturbance in the social fabric. Now, actual intention of promoting this Christian missionary was that the Indians will change their attitude. ठीक है, इंडियंस क्या, वो कंपनी बेवकूफ थोड़ी है कि वो उन्हें परमिशन दे रही है. अदरवाइज वाई दे विल एंटेगोनाइज द रिलीजियस क्लास इन द कंट्री. बट दे हैव गिवन दिस परमिशन इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ कि ये क्या करेंगे? वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करेंगे इंडियंस. एंड वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इतना खास नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज करेक्ट. बट ये दे विल क्रिएट अ कंज्यूमर सोसाइटी फॉर द वेस्टर्न प्रोडक्ट्स, बिकॉज क्रिश्चियन लाइफस्टाइल इज सिनोनिमस टू व्हाट? क्रिश्चियन आइडियोलॉजी. मतलब वेस्टर्न लाइफस्टाइल सिनोनिमस किससे है? क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से है, ठीक है, उनके कंसिडरेशन के हिसाब से. एंड दे विल क्रिएट अ न्यू मार्केट इन इंडिया, एंड दैट व्हाट हैपेंड. वही हुआ, ठीक है. नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, ठीक है, विच वॉज बाय स्किन एन इंडियन बट बाय टेस्ट इज वेस्टर्न. दिस इज व्हाट दे वांट टू अचीव एंड दे हैव अचीव्ड. अनलेस एंड अनटिल गांधी हैज नॉट केम. गांधी से इतना डरते क्यों थे वो लोग? ये गांधी को इतना नफरत क्यों करते थे? एक्चुअली ही वाज टारगेटिंग द इकोनॉमी. उसको तो पता था एक ना एक दिन तो गांधी वाज वेल अवेयर कि वन डे देयर विल बी अ फ्रीडम. तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीडम मिलना ही मिलना है, ठीक है. वो तो कोई कंट्री ज़्यादा सब्जुगेशन में, क्योंकि सिनेरियो बन चुका था फ्रीडम का, ठीक है, उसे पता था. लेकिन उसे पता था कि ऐसे नहीं फ्रीडम मिलेगा. वी नीड टू स्ट्राइक ऑन द इकोनॉमी. He has done that very good. Okay, why Gandhi is considered as a very different? Because he was a leader with an Indian attire. What is Indian attire? Only dhoti, not kurta. Dhoti, if you're Brahmin, janiyo. ठीक है, that was the Indian attire at that time. अब तो कुछ और है, ठीक है. तो basically this is what happened in that, and Gandhi was accepted for this reason only, because early, all the leaders at that time was wearing a suit, pant and everything. वो देख करके लोग देख के बोलते थे बाबू, यू नो बाबूस, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको बाबूस बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं बाबू, ठीक है. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे उनको बाबूस बोलते हैं. रीड एनसीईआरटी, उसमें लिखा है ये वर्ड, समझाया भी है कि बाबूस का मतलब क्या है, ठीक है. सो बाबूस थे, पर गांधी देवर लुक अलाइक थे उन लोग के. उनके बदन में भी कपड़ा नहीं था, इन्होंने भी त्याग रखा था. इट वॉज मोर कनेक्टेड. गांधी वॉज अ मास्टर
मास्टर स्टडीज, नो डाउट, ठीक है। परमिशन टू क्रिश्चियन मशीनरीज, और क्या हुआ? ओके, सोवरेनिटी वर्ड हैज बीन यूज्ड, no word not has been used but the sovereignty has been intact, ठीक है, because the constitutional position or the constitutional position of crown was established, ठीक है। now all the things should be, although सारी चीजें अभी भी डायरेक्टली क्राउन के नाम पे नहीं हो रही हैं, ठीक है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1858 से, लेकिन इनडायरेक्टली क्राउन का कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी मिला यहां से, ठीक है। Now all the regulation that is made, ये कैसे मालूम पड़ेगा? all the regulation that is made by बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, and Madras should be approved by British Parliament, should be approved by British Parliament, तो sovereignty समझ में आती है, ठीक है। then ओके, सेपरेशन हुआ यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर फिर से होगा, ठीक है, किसके बीच में होगा? सेपरेशन ऑफ पावर पहले क्या कहाँ हुआ था? लेजिस्लेचर और, अब कहाँ होगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। सो सेपरेशन कंप्लीट हो गया, सेपरेशन कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में हो ही चुका था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हुआ है, अभी बचा क्या है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो वहां भी लास्ट में आते थे, हालांकि ये हमने किया नहीं लास्ट तक, ये हमने कहाँ तक नहीं किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट तक हमने नहीं किया, ठीक है। 42nd के बाद हम करेंगे एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी का डिफरेंशिएशन। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था मोस्ट ऑफ द केसेस देख रहा था, अभी भी देखता है, अभी भी देखता है, ठीक है, स्टिल ओके। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज नॉट अ वेलफेयर बट वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ऑल्सो टेकन, ठीक है, वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी is also taken here for the Indians. 1 lakh rupees should be kept aside for development of education of native Indians every year, but this has never implemented, okay. Now why? There was always a controversy over the language, that which language should be given the priority. इतने सारे लैंग्वेज, इंग्लिश को देना है कि नहीं देना है? ओरिएंटल और इंग्लिसिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्सी रही है लास्ट तक, जब तक कि वुड्स डिस्पैच नहीं आएगा। वुड्स डिस्पैच इन 1953-51, सॉरी 1851-50, ठीक है, ऐसे ही 1851 में है, 1851 में वुड्स डिस्पैच आएगा। जो वुड्स डिस्पैच ने बोला, अप टिल अभी तक हम उसी को फॉलो, हमारा फाउंडेशन प्रिंसिपल आज भी वही है एजुकेशन सिस्टम का मोस्टली, ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट वी गॉट इन 1813, ओके, देन 1833, ठीक है, 1833, व्हाट इज न्यू इन दैट? ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है। गवर्नर जनरल कैन बी नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ईस्ट हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है, मोनोपोली पूरी खत्म हो गई। What is new?
ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ हाँ कैसे? कॉमन क्लास की पावर सब कुछ आ गई किसके पास? गवर्नमेंट के। ओवर सेंट्रलाइजेशन, so the presidencies lose their judicial, executive, legislature, all the power, सारे पावर खत्म हो गए उसके, ठीक है। अनदर मोर थिंग दैट हैपन, यूरोपियंस के ऊपर जो इमिग्रेशन का रेस्ट्रिक्शन था दैट हैज बीन लिफ्टेड, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। यूरोपियंस के ऊपर जो उनके वहाँ के लोग यहाँ इमिग्रेशन, वहाँ के लोग यहाँ आके काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें दैट हैड गॉट abolished. So it was, India was for sale for Europeans, ठीक है, okay. Then गवर्नर जनरल इंडिया हाईली एम्पावर्ड, ठीक है। सिविल और मिलिट्री पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मोर सेंट्रलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, लॉ मेंबर वाज एडेड, वन लॉ मेंबर was added, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, ठीक है, परमानेंट नहीं था, लॉ मेंबर वाज एडेड ओवर हियर। इट ऑल्सो एनविजन, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एनविजन हुआ, दैट वाज one important element that envision was codification of law, codification of law। तो तुम्हारा सीआरपीसी 1851 है, मैं कॉलर रिपोर्ट के बाद में 1841 नॉट अवेयर। सीआरपीसी तुम्हारे पास, इंडियन पेनल कोड तुम्हारे पास में, इट इज गिवन हियर ओनली, ठीक है, ये सब यहीं का है, ओके। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, सब इसी टाइम का है हमारे पास में। अमेंडमेंट्स में उसके अंदर काफ़ी, लेकिन हम लोगों ने बेसिक अभी कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, बेसिक अभी। सीपीसी तो बाद में आता है, सीपीसी बाद में आएगा, ठीक है। देन वन मोर थिंग, इंडियनाइजेशन। Indianization of administration started. Indianization of administration started. What is that? Now, Indians were allowed to participate in the civil service. Okay. Although there was restriction, ठीक है, एक restriction था, बाद में तो लास्ट में हटाया, 1919 तक जाके हटाया, ठीक है, तो दैट 1909 तक हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे था restriction, okay. So this is what we have for CA 8033 important, कुछ एलिमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एनी क्वेश्चन? देन 1853, अगेन एग्जीक्यूटिव में ओपन कंपटीशन, ठीक है, ओपन कंपटीशन इन एग्जीक्यूटिव, okay. Law member which was a part-time member, it will become a law full-time member, full-time law member, okay. Why we need a law member here? To make a law very professionally, ठीक है, ताकि लॉ बड़ी प्रोफेशनली बनाया जाए। So they started the element of what? Element of legislation, ठीक है, starting the establishment of legislation over a time, okay. Legislative and executive, yes.
1833 में, 13 में फर्स्ट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन। हाँ, दोनों ही है। सेपरेशन ऑफ, ओके, सेपरेशन ऑफ 1853 में सेपरेशन होगा, विल कम टू दैट 1813 में। करेक्शन है, 18 सेपरेशन होगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यहाँ पे। वहाँ पे जो वापस चेंज करो उसको 1830 में। एक करेक्शन है, जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ अकाउंट होगा 1813 में। 1813 में सेपरेशन ऑफ अकाउंट होगा। सेपरेशन ऑफ अकाउंट किसका? ब्रिटिश का अकाउंट, कमर्शियल और एंड टेरिटोरियल अकाउंट। मतलब जैसे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के रेवेन्यू का अकाउंट डिटेल अलग अलग होगा। कमर्शियल मतलब ट्रेड से कितना आएगा तुम्हारा अकाउंट में, और टेरिटोरियल मतलब टैक्स से कितना आएगा। ठीक है, दिस इज, ये डिफरेंस होगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेशन यहाँ होगा। ठीक है, facts might get wrong. I'm not a रजनीकांत और a Google. ठीक है, दोनों भी नहीं। ओके, सो 1853 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव हैपन। ठीक है, यहाँ पे भी सेपरेशन हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अभी नहीं होगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंस के बाद ही होगा कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोविजन है डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी का प्रोविजन है वो, इसी के लिए वो सेपरेट किया गया था। ठीक है, नाउ लोकल रिप्रेजेंटेशन विल स्टार्ट इन द लेजिस्लेचर। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर बेसिकली क्या है ये लोकल रिप्रेजेंटेशन जो लेजिस्लेचर में स्टार्ट होगा? ये नॉन ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, नॉट ऑफिशियल मेंबर बट द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। डन, नथिंग एल्स इज देयर। गवर्नर चलने के बाद ऑलरेडी वीटो पावर है, तो it's not required. Act of 1858, Act of 1858. Why act? Revolt, everything happened. ठीक है, now India will be governed in the name of crown. Crown rule will start. Okay? That is, the code of director will get abolished. कोड ऑफ डायरेक्टर जो पोजीशन था अब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो दोनों ही खत्म हो गया एक्चुअली में देखा जाए तो। अब ब्रिटिश क्या करेगा? डायरेक्टली रूल करेगा। एस्टैब्लिश ऑफिस, एक ऑफिस स्टैब्लिश होगा, दो ऑफिस स्टैब्लिश होगा, एक वॉइस रॉयगा एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो गवर्नर जनरल विल बिकम द वॉइस रॉय and secretary of state will be the new office, will be a member of cabinet, cabinet parliament का member रहेगा। ठीक है, he will be assisted by member of 15 member council, 15 member council से assisted रहेगा।
15-member council से assisted. 15-member council से assisted. This is a जो council बनी है, ठीक है, this is a council. It is an advisory body. ये क्या है? Advisory body. It has no significant power. खाली advise करने के लिए. The ultimate power is with the Secretary of State, and he is responsible for all the activity in the country, India. He has the final authority on everything. ठीक है? He can override any bill that is given by the Viceroy. So you see in this, the element of dominion status kind of thing started. ठीक है? जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हो रही थी, तो डोमिनियन स्टेटस काइंड ऑफ थिंग ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक, एक्चुअल डिमांड क्या थी इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स की? डोमिनियन स्टेटस सम सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. ठीक है, तो वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस है, मतलब क्राउन इज स्टिल रूलिंग एज अ ट्यूटेलर हेड. ठीक है, बट द रियल पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर विच इज सिलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास में जो इलेक्ट बाय द पीपल होगा. ठीक, गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज व्हाट इज ओके. देन वी हैव, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होगा दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. कुछ ही इंपॉर्टेंट है. 1861, 1893. देखो कुछ ही काउंसिल एक्ट इंपॉर्टेंट है. 81, 93, देन 1909, 1919, 1935. ठीक है, ये कुछ 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, यही है. उसमें 1860, 1872 भी है कहीं कहीं पे. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1861 is important. Why? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट 1861 का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल का. लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर से ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया. सेपरेशन ऑफ पावर हो चुका था 53 में, तो दोनों में अलग हो जाएगा. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी मेड स्पेशली. इसमें इंडियंस को अलाउड किया जाएगा. इंडियंस आर अलाउड, सो दे आर स्टार्टेड टीचिंग इंडियंस हाउ टू मेक अ लॉ. ठीक है, पहले लॉ कौन बनाता था इंडिया में? किंग, और जो उसके मिनिस्टर्स होते थे वो लॉ बनाते. ठीक है, पर हम लॉ किसे सिखा रहे हैं? इंडियंस को, कॉमन. एवरी इंडियंस कैन लर्न द लॉ. अब जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में रहा है उसे पता है. तो द काउंसिल, द किंग और उनकी जो काउंसिल होती थी, तो उनके घर वाले लोगों को पता है कि लॉ बनता कैसे है, क्योंकि दे आर अवेयर अबाउट द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड. बट यू स्टार्टेड टीचिंग द कॉमन इंडियंस. कॉमन इंडियंस को कैसे पता है? यू स्टिल नाउ ऑल्सो हाउ द लॉ इज मेड इन इंडिया. लॉ कैसे बनता है इंडिया में? कुछ रीडिंग होती है, कुछ होता है, नहीं होता है. कुछ रीडिंग वगैरह होती है, नहीं होती है. कौन सी रीडिंग? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. ठीक है, तो सारे प्रोसीजर्स होते हैं. सारे प्रोसीजर इसी को कहते हैं. ठीक है, हाउस से बिल पास होना, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाना, फिर प्रेसिडेंट, इट्स अ ब्रॉड एरिया. ये ब्रॉडली समझते हैं कि ऐसे पास होगा बिल. ठीक है, पर यू हैव अ माइन्यूट डिटेल ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग होगी, गैजेट में कब पब्लिश होगा, कमिटीज का अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी ऑन पर्टिकुलर बिल पे रिएक्शन क्या है. ठीक है, फिर पब्लिक का इनपुट है या नहीं है बिल के ऊपर. ठीक है, दिस इज ऑल द थिंग दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड टीचिंग टू द कॉमन इंडियंस so how to make a bill, how to make a law. Okay, so if you are talking about legislature, what is the important element that has been there?
प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड, ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना, ठीक, ऑल्दो दे वर एलीट्स, ठीक है, बट यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। अनदर वन इज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होगा, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, यू नो पोर्टफोलियो सिस्टम? नो, नहीं पता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, वुमेन, हेल्थ, ये क्या है? पोर्टफोलियो है, इसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया पोर्टफोलियो सिस्टम? कोई कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट की जाएगी गवर्नमेंट के अंदर ही। जैसे कि ये पूरा गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, ठीक है, पोर्टफोलियो इज एन एग्जीक्यूटिव जॉब, ये पूरा एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव की क्या है? बहुत सारे काम है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, अलग अलग सेक्टर के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो पीएम तो सारी जगह तो नहीं हो सकता है, और हम मल्टीपल नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? मिनिस्ट्रीज बना देते हैं, ठीक है, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये यूनिट बनाते हैं ना हम लोग, इसे ही कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। Got it? This portfolio system is a initiation of which type of government? Initiation of not decentralizing. कहाँ डिसेंट्रलाइज हो रहा है? और कहाँ पे है? तो कहाँ से डिसेंट्रलाइज हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। इनिशिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है डेमोक्रेटिक, इनिशिएशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम का इनिशिएशन। कैबिनेट का मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, उसको ग्रुप कर दो, दे विल टेक द एंटायर डिसीजन, ठीक है, दैट इज अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टार्टेड इन इंडिया। ब्रिटेन में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा था, ठीक है, इंडिया में उसे इनिशिएट किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम से, ठीक है। इसमें अब देन यू कैन से devolution of power, devolution of power होगा, how? the power, हाँ, the power of provinces, power has been written बॉम्बे और मद्रास का, उन्हें वापस दे दी गई, ठीक है, प्रोविंसेस को उनके पावर्स वापस दे दी गई, okay. So now you see they have a legislative council. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखना, ठीक है, यही काम है। तो यहाँ पे बजट पे कोई डिस्कशन नहीं, नो डिस्कशन और नो कंट्रोल ऑन बजट, no control on budget. Along with that, no control on executive also. The executive is explicitly more powerful as compared to anything. Okay, then, so this is what all we have in 1861. So we have started the element of from here, ठीक है, अभी सारी लड़ाई इसी के लिए है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर के 35 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेन फाइट है, ओके। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट स्टार्ट किया है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर के बीच में हमने डिमार्केशन शुरू किया यहाँ से, गेटिंग इट? कंफ्यूजन?
ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? मोस्टली इंडियंस, ठीक है, जो लॉ बनाने में हेल्प करेंगे। 18 काउंसिल एक्ट 1893 में क्या होगा? दिस विल रेज्ड, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर्स को बढ़ा दिया जाएगा दोनों जगह पे, प्रोविंस में भी और सेंटर में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है बजट, बजट पे डिस्कशन स्टार्ट होगा 93 में चलेगा, नो प्रॉब्लम, 93 है, 92 93 इट्स ओके, 92 है, 93 है कहीं पे, 92 की भी 92 1892, क्योंकि 93 में मेरे ख्याल से कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका क्या होता था कि सब कुछ एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं होता था, कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट होता था, हाँ थोड़े थोड़े पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करते थे उससे, ठीक है, ग्रेजुअली। लेजिस्लेटिव काउंसिल विल एक्सपांड, अलग से लिखो, इसमें समझाओ कि अलग से लिखो, अलग से लिखो, अलग से लिखो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लेजिस्लेचर में देखते हैं क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपांशन हुआ, ठीक है, किसका एक्सपांशन होगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेचर में तो दोनों जगह होगा एक्सपांशन, ऑल्सो इन द सेंटर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑल्सो इन द प्रोविंसेस। एक्सपांशन तो नॉन ऑफिशियल्स का होगा, मेजॉरिटी किसकी होगी? बट द मेजॉरिटी विल बी ऑफ ऑफिशियल्स। अब ये कोई नहीं कहेगा सर कितना एक्सपांशन हुआ, दैट इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है, ओके। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पोर्टफोलियो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ? एक्चुअली नो चेंज। और क्या इंपॉर्टेंट है, अभी भी कैसा है? एक्सक्लूसिव है, कहां पे? एक्सक्लूसिव टू ब्रिटिश, ठीक है, एक्सक्लूसिव टू ब्रिटिश, दोनों ही किए गए थे, ठीक है, चाहे गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो और चाहे गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, गवर्नर का भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, दोनों ही जगह पे अभी भी इंडियंस अलाउड नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउड हुए हैं, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नाम पे, एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश के लिए ही है अभी भी वो, हाँ अभी ब्रिटिश मेंबर्स उसके ब्रिटिश ही हैं, बाकी इंडियंस नहीं आए अभी। 1909 में इंडियन आए हुए, वन इंडियन विल बी इनकॉर्पोरेटेड, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर, ठीक है, वो विल मेक यू राइट, डोंट वरी। और क्या काम है लेजिस्लेचर का? जुडिशरी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जुडिशरी सेम। लेजिस्लेचर में और एक चीज क्या हुआ? एक्सपांशन तो हुआ, साथ में बजट, दे वर एम्पावर्ड टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट, ठीक है, बजट में एक चेंजेस हुआ, टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन बजट, बट नो राइट टू वोट, वोटिंग राइट नहीं है अभी भी, नो राइट टू वोट ऑन द बजट, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं पूरे बजट के अंदर कहीं भी, ठीक है, कहीं भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं आप, ओके। सो एनी कंफ्यूजन ऑन दिस 1892 में, ठीक है, क्लियर? देन वी हैव सबसे इंपॉर्टेंट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
It is also known as Mirlo, Morlo, Mirlo, Morle, Morley Minto reform. Kindly remember this name. Morley Minto reform. Morley was cabinet secretary of state. Was it Minto? Minto was governor general. Oh, he was here. Okay. मॉरले सेक्रेटरी है मिंटो, उससे बड़ा पोस्ट है तो आप पहला नाम उसी का जाएगा. तुम्हें नहीं पता है, यू नो व्हाट इज दिस कॉलेज डिग्निटरीज, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ रैंकिंग इन इंडिया? क्या कहते हैं उसे? स्किपिंग दैट नेम. प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन CGI, देन प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट कहाँ गया? नहीं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर. काइंडली रिमेंबर दिस हायरार्की. ओके, 10 तो रखो याद. 10 तक रखो. कहाँ तक 10 है? 10 कभी पूछ लिया इंटरव्यू में. हायरार्की सिविल सर्वेंट में भी है, 11-12 पे है सिविल सर्वेंट. इंडियन IAS ऑफिसर्स के रैंक 12-13 में आई गेस IAS. भाई मजाक नहीं हो रहा है, आप लोग हैं कुछ. ठीक है. लेकिन मॉरले मिंटो रिफॉर्म, यू राइट इट अलॉन्ग विथ मी. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेजिस्लेचर में क्या हुआ? लेजिस्लेचर शुरू कर दे. ठीक है, दोनों जगह लेजिस्लेचर है, स्टेट और सेंटर और दोनों. ठीक है. एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है. अच्छा, इन द बैक वन सेकेंड, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट थी. जो ये एक्सपांशन हुआ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, ठीक है, इट एक्सपांडेड फ्रॉम इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके, इट एक्सपांडेड फ्रॉम इनडायरेक्ट इलेक्शन. अच्छा, ये कौन मेंबर्स भेजते थे लोग? चेंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गई थी. ठीक है. म्युनिसिपल बॉडीज, जो म्युनिसिपल बॉडीज थी. ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज, म्युनिसिपल बॉडीज. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जमींदार्स, जमींदार. So this many people used to send the people for the indirectly to these places. Okay, दोनों legislature में as a non-official members. Yeah. So element of election, although the word election has not been used. ठीक है, election word वो use नहीं किया गया है. Election word यहाँ use होगा 1909 में. Okay, direct election, but we have a direct election, but we have a
सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरेट? द मीनिंग, ठीक है, द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरेट इज द पर्सन who votes. ठीक है, द पर्सन हु वोट्स. तो यू आर अ इलेक्टोरेट. ठीक है, व्हेन यू इलेक्ट योर एमएलए और एमपीज यू आर अ इलेक्टोरेट. ठीक है, द वर्ड इलेक्टोरेट मीन्स दिस. ओके, so we have a separate electorate. Okay, now what does separate electorate started? It simply means that separate electorate is given to Muslims. Okay, Muslims. What does it mean? It simply means that the Muslim candidate, ठीक है, Muslim candidate actually their share has been fixed. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपांशन होगा ना, उसमें उनकी सीट्स फिक्स होती हैं कि इतनी सीट से टू विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन. अगर से 100 सीट्स हैं तो कंसिडरिंग देयर पॉपुलेशन इज 20%, तो 20 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर देम. ठीक है, दैट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट. ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया तो फिर आप सारे लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दें, ऐसा नहीं है. द नंबर ऑफ सीट हैज बीन रिजर्व. ठीक है, जैसे कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस वे. इन इंडिया currently there is a reservation of seats for whom? For SC and ST, not OBC. SC and ST. Okay, OBC के लिए नहीं है. Don't get confused. किस केस में? सेंटर और स्टेट के इलेक्शन में. अब जो सीट रिजर्व्ड है वहां पे अगर से रिजर्व कैंडिडेट ही खड़ा होगा, ठीक है, SC और ST का ही कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पे. गेटिंग द पॉइंट? लेकिन उसे वोट, उसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन बनेगा? सब लोग, जितने लोग वहां के वोटर्स हैं सब लोग उसके इलेक्टोरल पार्ट रहेंगे. ठीक है, ऑल्दो द सीट इज रिजर्व. ठीक है, लेकिन अगर इस केस को, सेम सिचुएशन को अगर 1909 में ले जाए, सेम सिचुएशन. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना. सीट रिजर्व्ड है, SC का कैंडिडेट खड़ा होगा या ST का कैंडिडेट खड़ा होगा. ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट दे सकती है. ठीक है, जो खड़ा, लेकिन वोट सभी करेंगे उसको. एवरीबडी विल वोट. नाउ ब्रिंग दिस सेम सिचुएशन टू 1909. इन 1909 द सीट इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स. ओके, मुस्लिम गैंग. ओके, ये सीट रिजर्व्ड है मुस्लिम्स के लिए. नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस? डज एवरीबडी विल वोट टू दैट कैंडिडेट और नॉट? एवरीबडी मीन्स ऑल पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन. they are going to vote or not? The answer is no. ठीक है, आंसर क्या है? No. Why? Only Muslim people will vote to Muslim candidate. ठीक है, that is the meaning of separate electorate. Apart from Muslim, ठीक है, apart from Muslim, मुस्लिम के अलावा अगर कोई और खड़ा होगा, ठीक है, तो वो मुस्लिम वहां वोट नहीं करेगा. The other religions will vote them. That is Buddhist, Hindu, Sikh and everyone. ठीक है, ओके, वो लोग, बाकी लोग वोट करेंगे वहां पे. नहीं, उसके कंपटीशन में नहीं, उसकी सीट रिजर्व्ड है, उसको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है. कंपटीशन किससे होगा बताते हैं? कंपटीशन होगा पार्टीज में. कांग्रेस अपना मुस्लिम कैंडिडेट भी दे सकती है. ठीक है, विल बैक टू दिस. मुस्लिम लीग अपना मुस्लिम कैंडिडेट भी दे सकती है. दोनों ही अपना अपना कैंडिडेट दे सकते हैं. मुस्लिम लीग भी अपना कैंडिडेट दे सकती है. बाय द टाइम मुस्लिम लीग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट दे सकती है और ये लोग भी अपना कैंडिडेट दे सकते हैं. जीतेगा कौन? टू गेट द मैक्सिमम वोट्स. ठीक है, सिंपल. अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, कौन? तो मुस्लिम वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हो सकते हैं, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट है ना. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हो सकते हैं. अभी फर्स्ट नहीं, एक इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही होता है. क्या 2 हो ही नहीं सकता इंडिया में? एक ही है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही
मेंबर इलेक्ट होगा। अगर रिजर्व सीट्स हैं तो अगर रिजर्व सीट्स हैं, जो कि रिजर्व सीट कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन एक बनती है, वो डिमार्केट करती है और रोटेशनल बेसिस पे होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड। जनरली वो पॉलिटिकल स्टंट होता है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल स्टंट होता है वो, और स्पेशली इट इज हाईली मिसयूज्ड इन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो पार्टी इन पावर है उसको हाईली मिसयूज करती है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है? डिलिमिटेशन कमीशन का काम है डिमार्केट करना बाउंड्रीज को और सीट्स को रोटेशन में रिजर्व करना, ठीक है, ये इसका काम है, डिमार्केट करना बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज जो है वो डिमार्केट करने का काम उसी का है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? दैट द डिसीजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, इट इज इम्यून फ्रॉम चैलेंजिंग इन द कोर्ट। लेकिन इसका फायदा भी है, अगर चैलेंज करेंगे तो इतने पिटीशन रहेंगे कि जुडिशरी पागल हो जाएगी, दैट इज अ लॉजिक टू नॉट डू सो, बट दैट गिव्स द इमेंस पावर टू द नो नॉट टू रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के लिए इमेंस पावर है, ठीक है। जैसे कि ममता बनर्जी इज कॉन्स्टेंटली अक्यूजिंग इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट फेयर, ऑल द इलेक्शन कमीशन इज नॉट नेवर फेयर, और 2019 के इलेक्शन में तो कुछ ज़्यादा ही नहीं फेयर था, दैट इज अ हाइट नॉट बीइंग अ फेयर, ठीक है, बायस्ड ओपिनियन रहा है कई जगह पे, ओके। सो दैट इज द रीजन द क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर ईयर हैज केम फॉर द इलेक्शन कमीशन इन द मेंस पेपर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, एक बात हमेशा याद रखो, डोंट बी इमोशनल, ठीक है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपका लगाव है तो अगर इमोशनल अगर आप हैं, once incident happened in the interview, one guy has been asked about the opinion on the political parties, Congress, ठीक है, he started his answer with Shrimati Sonia Ji, ठीक है। क्या हुआ उसके साथ में? यार वो 70 नंबर भी नहीं मिला, बायसनेस नजर आता है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव एन इमोशन, वेरी गुड, इमोशन पढ़ो, सिलेक्ट हो, प्रोबेशन पीरियड खत्म करो, ठीक है, टेम्परेरी अपॉइंटेड फॉर अ ईयर एंड हाफ एंड 2 प्रोबेशन पीरियड, फिर उसके बाद परमानेंटली एम्प्लॉयड हो, तो उसके बाद अपना एफिलिएशन दिखाओ। तो उससे पहले अगर एफिलिएशन दिखाया ना तो लोग घर दिखा देंगे तुम्हें, ठीक है, ये सब मत करो, बी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उनको नहीं बेवकूफ़ बना सकते ना, 30-35 ईयर्स का सर्विस का उनका वो है, एक्सपीरियंस है, डोंट डू दैट। एंड दिस क्वेश्चंस, एग्जाम्स, दिस आर ऑल मेड बाय रैशनल पीपल, कॉलेज के प्रोफेसर्स तुम्हारा जो है ये सब पेपर बनाते हैं, वो करते हैं, वेरी हाईली रैशनल पीपल, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। That is the reason the question has came. Because of the secularism, the Indian values are getting diminished. तो उसमें हंगामा हो गया, बच्चों ने, जेएनयू ने हंगामा कर दिया, ठीक है। ये देखो, the status of UPSC is getting down, but they don't know actually, they don't understand the question. The question is not asking, question is judging you. How far you are entrenched with the value and how biased you are with the values, ठीक है। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज है, ठीक है, वैल्यूज इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे अगर आता है इट इज ओके, वैल्यूज अगर लार्जर हार्म टू द लार्जर सोसाइटी, देन व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वैल्यू? इट्स बेटर टू रिफॉर्म योरसेल्फ। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी इज अ प्रोग्रेसिव एलिमेंट, ठीक है, काइंडली डू दैट, डोंट, सोनिया जी रहने दो, ठीक है, मोदी जी सब ठीक है, ये सब आएंगे और जाएंगे, ठीक है, यू विल बी द परमानेंटली, द सोसाइटी, कंट्री, द स्टेट्स फॉर परमानेंट, द पॉलिटिशियन कम्स, दे गो, गांधी हैज केम, ही वेंट, नेहरू केम, ही वेंट, अम्बेडकर केम, वेंट, यू डू, यू कंट्रीब्यूट एंड यू मूव, ठीक है ना। बैक टू टॉपिक, सेपरेट इलेक्टेड, अब समझ में आया सेपरेट इलेक्टेड का मतलब क्या है? अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को?
नहीं, ठीक। तो सेपरेट इलेक्टोरेट हैज बीन एस्टैब्लिश। लेजिस्लेचर में अब किसका डोमिनेंस होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट से जो कैंडिडेट आएंगे इलेक्ट होकर के डायरेक्टली इलेक्शन से, दिस इज द फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शन इज हैपनिंग, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? मेजॉरिटी किसकी हुई? इंडियंस, ठीक है। द इलेक्टेड एंड दे आर ऑफिशियल्स नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इज नो मोर देयर, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ऑफिशियल्स ही हैं, नॉन ऑफिशियल भी रहे हैं, मोस्टली ऑफिशियल, सब सारे ही ऑफिशियल्स हैं। नाउ दे एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ओके। मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाट अदर थिंग हैज हैपेंड इन दिस 1909, दोनों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया क्योंकि अकोमोडेट करना था पॉपुलेशन के हिसाब से, तो बट ऑब्वियस है कि वो साइज को इंक्रीज करेगा। इसी के लिए आज तक ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल के नंबर पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि दैट इज एन इडियोटिक क्वेश्चन समबडी आस्क, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उस क्वेश्चन का। यूपीएससी द पेपर, द वन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो वेयर टू आस्क, वेयर डोंट आस्क क्वेश्चन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज देयर, ऑल द वोटिंग राइट सबको मिली थी? नो। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए वोटिंग राइट जो है लिमिटेड थी, ठीक है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। इसको नींद आ रही है? नहीं, ठीक है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स है, ओके, गॉट इट। दिस वोटिंग राइट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, हाउ मच प्रॉपर्टी यू हैव, ठीक। जमींदार हैं तो आपके पास राइट है, बिकॉज व्हाट हैपन, यू नो, डेमोक्रेसी वाज नेवर कंसीडर्ड फॉर द पुअर्स, डेमोक्रेसी पुअर्स के लिए बोला ही नहीं गया कभी, ठीक है। डेमोक्रेसी बोला ही गया रिच के लिए और अक्लमंद लोगों के लिए, अनपढ़ के लिए भी डेमोक्रेसी कभी नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखो। ऑल द पॉलिटिकल थिंकर्स since the Plato to the Marx, you know, Karl Marx and people after him, nobody has talked about democracy for the poor and the masses, बोले इनका काम ही नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है, बट ठीक है, डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए, राइट टू वोट सबका अधिकार है। व्हाट वी सी, जैसे डिक्टेटरशिप है, जैसे अभी अब तुम मटेरियल ग्रोथ की बात करो, डिक्टेटरशिप, you find dictatorship in Middle East, but materially they are very advanced, ठीक है, उनके पास सोने की गाड़ियाँ हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ रिसोर्स इशू, ठीक है। वहाँ पे उनके पास ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज़ अ न्यू ऑयल, नाउ दे आर चेंजिंग इट, यू गेटिंग अ न्यू रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स तुम बना रहे हो, अब वो मार्स पे जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग यू, वो भी पहुँच गए मार्स पे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं पहुंचे अभी तक, मार्स पे नहीं पहुंचे, मिडिल ईस्ट, कहाँ हो तुम लोग? व्हाट आर यू रीडिंग? मिशन का नाम बताओ। रोवर उसका नहीं है, परसीवर भी उसका नहीं है, परसीवरेंस भी उसका नहीं है, दोनों अमेरिका नासा का वो है। मार्स पे यूएई से कोई गया है कि, मतलब मिडिल ईस्ट से कोई गया है कि नहीं? उनका कोई मिशन सक्सेस हुआ है? No. Mission Hope, UAE was successful to launch Mars mission, जैसे इंडिया का मार्स मंगलयान ऑर्बिट कर रहा है, वो भी कर रहा है। अमेरिका तो अभी तुम ऑर्बिट कर रहे हो ना, अमेरिका कहाँ है? नासा इज ऑन द लैंड, ठीक है, तो तुम लैंड में भी जाओगे, वो ऑलरेडी है, ठीक है, गेटिंग इट। तो यूएई का होप मिशन, ठीक है, सक्सेसफुल मार्स मिशन, वो भी एलीट क्लब में है अभी मार्स के, ओके, इंटरप्लैनेटरी मिशन है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव ओनली इन 1990, कुछ मेजर चेंज नहीं है 1909 में, ठीक है। अच्छा, एक और है, एक एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ है, एग्जीक्यूटिव में इंडियंस वेर एडेड, इंडियंस अलाउड, यहां से शुरू होगा एग्जीक्यूटिव का रिफॉर्म।
नाउ इंडियंस आर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा becomes the first law member. फर्स्ट लॉ मेंबर, ठीक, पहला लॉ मेंबर सत्येंद्र नाथ सिन्हा, परमानेंट फुल टाइम. Now Government of India Act 1990, change it. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. ओके, इसे और क्या कहते हैं? अनदर नेम इज मॉन्टेग्यू. MONG है, MON बराबर है. ओके, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, इसे इस नाम से भी जानते हैं. इसमें मोंटेगो इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड है वॉइस रॉय, पक्का गवर्नर जनरल. ओके, this act is very famous for what? Very famous for one thing, clearly clarifying the objective of British rule. सबसे important element है clarifying the objective of British rule. And what is the objective of British rule? To establish responsible government. ठीक है, अब एक साथ तो नहीं देंगे, तो धीरे धीरे देंगे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर, लेजिस्लेचर में तो ऑलरेडी तुम्हें दे दिया था ना, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जरूरत क्या थी? एग्जीक्यूटिव में रिफॉर्म मांग रहे थे वो, एग्जीक्यूटिव में रिफॉर्म मांग रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? पढ़ाया है, आई नीड एन आंसर ऑन दिस. यू डोंट डू. आप तीनों में से कोई एक बताओ, मैं तो आधा घंटा और बिठाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? पढ़ाया है, आई नो. ओह, सोचो क्या हो सकता है. नहीं, टेक्निकल टर्म है, टेक्निकली आंसर करो. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज ए टेक्निकल टर्म इन पॉलिटी. कैसा एक्शन? एक्शन तो गवर्नमेंट एक्शन करती है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में. नहीं, आइडिया नहीं, याद नहीं, रिवीजन नहीं हो रहा. रिवीजन करो. पढ़ाया नहीं पढ़ाया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टेक्निकल टर्म है. पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? वेरी गुड. एग्जीक्यूटिव इज यही पढ़ा है, यही होता है, यही डिमांड कर रहे थे वो. होम रूल मूवमेंट, ये सब मूवमेंट किसके लिए है? इसी के लिए. अभी समझ में आया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब? ओके, स्टैब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए तो रिफॉर्म कहाँ करना पड़ेगा? ऑलरेडी रिफॉर्म कहाँ हो चुका है? हो चुका है, और थोड़ी ज़रूरत है. अब कहाँ करना है लेकिन? एग्जीक्यूटिव में.
तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव में रिफॉर्म चाहिए, ठीक है, रिफॉर्म्स इन एग्जीक्यूटिव, दोनों सेंटर और स्टेट में भी दोनों जगह चाहिए, लेकिन कहाँ दिया, अकॉर्डिंग टू एक्ट वेयर दे गॉट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नॉट इन द सेंटर बट इन द स्टेट, दैट इज द प्रोविंसेस। सेंटर में कुछ नहीं मिला, सेंटर में कोई रिफॉर्म नहीं मिला उन्हें, सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश ही नहीं करी गई, इट स्टैब्लिश इन स्टेट। नाउ दे डोंट वांट टू गिव द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, they want to train you, what they think, they want to train you first how the system work, मतलब वो इतना बेवकूफ़ समझते हैं सबको, ठीक है, इंडियंस को, हद है। why, because they consider white man's supremacy, white race are superior, बाकी सारे, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसको होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट दे डू, दे हैव क्रिएटेड अ डायरकी, नहीं, don't write hierarchy. What they do, they have decided that we will not give the full responsibility, we will give the limited responsibility. Okay? They talk about the limited responsibility, that means हम आपको लिमिटेड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, मतलब कि हम कुछ ही एरिया पे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल देंगे लेजिस्लेचर को, इन सम एरियाज ओनली, नॉट इन ऑल द एरियाज। तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो व्हाट दे हैव डन, लिमिटेड के लिए उन्होंने पूरे एक्टिविटी को प्रोविंसेस के 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, पूरे एक्टिविटी को, ठीक है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी एक प्रोविंस में हो सकती है, एग्जीक्यूटिव जो कर सकता है, चाहे वो डिफेंस हो एग्जीक्यूटिव का, या फाइनेंस हो, या एजुकेशन हो, या डेवलपमेंट हो, या कुछ भी हो, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज एक रिजर्व लिस्ट बनाया और एक ट्रांसफर लिस्ट बनाया, ठीक है, 2 बनाया उन्होंने, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर, ठीक है। इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को बोला गया डायरकी। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला गया, डायरकी। अभी समझ में आया डायरकी का मतलब क्या है, क्यों, कैसे, ठीक है, डायरकी। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब हमने सब्जेक्ट डिवाइड्स कर दिया तो इसे सिस्टम को डायरकी बोला गया, ठीक है। डायरकी का मतलब होता है, डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल मीनिंग, इट्स अ डुअल गवर्नमेंट। क्या है डुअल गवर्नमेंट? तो डुअल गवर्नमेंट कैसे है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है उसमें अथॉरिटी किसकी है, अथॉरिटी इज ऑफ गवर्नर। ट्रांसफर में रीड इट अगेन, रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड इज द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। दोनों में ही अथॉरिटी गवर्नर है, बताते हैं, ठीक है। रिजर्व के केस में क्या है, दिस वट एवर हैज बीन रिटन इन द रिजर्व लिस्ट, इट इज नॉट फॉर द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उस पर ना बात कर सकता है ना कुछ भी कर सकता है, कोई एक्टिविटी। और इस पर्टिकुलर लिस्ट पे अगर कोई एक्टिविटी गवर्नर करता है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर नहीं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इस पे अगर कोई एक्टिविटी होती है तो दैट इज आंसरेबल टू द गवर्नर, और एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर कैन आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ यू हैव डन दिस जॉब, व्हाई दिस मच मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, गेटिंग इट। अभी समझ में आया, इसे कहते हैं डायरकी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन, वेरी गुड। दोनों में ही वीटो पावर है, फंक्शनली नहीं था, अभी बताते हैं। ये फंक्शन प्रॉब्लम क्या था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में तो लॉ बना सकता है वो, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में लॉ भी नहीं बना सकता है वो। इधर लॉ भी बना सकता है वो, आंसरेबल भी है तभी लॉ बनाएगा, लॉ बना रहा तभी वो आंसरेबल है,
ठीक है, ये लॉ बना सकता है ट्रांसफर में, यहाँ लॉ नहीं बना सकता वो, लॉ कैन नॉट बी मेड। ठीक है, इधर ट्रांसफर में लॉ तो बना दिया, लेकिन गवर्नर के पास में, प्रोविंसेस के गवर्नर के पास में वीटो भी है, उसके ऊपर गवर्नर जनरल के ऊपर के पास वीटो है, उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी वीटो है। मतलब ये फंक्शनल ही नहीं है। ठीक है, ये फंक्शनल ही नहीं है, सारे वीटो पावर्स है इसके पास में। गवर्नर के पास खुद वीटो पावर है, वो चाहे तो वीटो कर सकता है, वीटो पावर इज ऑलरेडी देयर। इसी के लिए ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं था, फेल हो गया था। ठीक है, ये हो गया लेजिस्लेचर का। एक लेजिस्लेचर में एक रिफॉर्म 1919 से, एक रिफॉर्म और लेजिस्लेचर में हुआ। ठीक है, वन मोर रिफॉर्म हैपन इन लेजिस्लेचर एंड दैट इज क्रिएशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल पता है ना, टू हाउस। Okay, बाय। My handwriting is not poor, but I'm not able to write from this. I need to दूसरा होता है ना sketch, वो लाना पड़ेगा। बाइकैमरल टू हाउस। ठीक है, कहाँ पे बनाया बाइकैमरल? सेंटर में। सेंटर में क्या बनाया? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। पहले क्या था? यूनिकैमरल था लेजिस्लेचर। ठीक है, बाइकैमरल बनाया, एक बनाया अपर हाउस, एक बनाया लोअर हाउस। अपर हाउस called as Council of State, lower house called as Legislative Assembly. ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोला गया। ठीक है, हमने उसका नाम चेंज किया बाद में देवनागरी में, हिंदी नॉमेनक्लेचर हमने बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में लिया, लोकसभा अंदर राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बाइकैमरलिज्म स्टैब्लिश किया गया सेंटर। ठीक, एक और रिफॉर्म हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस। लेजिस्लेचर में ही एक और रिफॉर्म होगा, एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, किसका एक्सटेंशन? सेपरेट इलेक्टोरेट का। ओके, अब किसको इलेक्टोरेट का राइट दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट का सिख, एंग्लो इंडियन, और किसे मिला? यूरोपियंस को, और इंडियन क्रिश्चियंस को। वही यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन इज एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस। हाँ, क्रिश्चियन, सिख क्रिश्चियन, यूरोपियंस को नहीं मिला, सॉरी, सिख क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन। तो सिख और क्रिश्चियन रिलीजन में, मतलब इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, हाँ एग्जैक्टली। एंग्लो इंडियन, सिख तो क्लियर हो गया, क्रिश्चियन रिलीजन पे क्लियर है। एंग्लो इंडियन इज ए रीजनल, ठीक है, जो वहां से यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी ने कुछ लोगों का रिलीजन चेंज किया ना इंडियंस का, वो क्रिश्चियन, वो उनका। एंग्लो इंडियन कौन? जो वहां से उनके फादर यहाँ के हैं, बाहर के हैं, और ये इंडिया के हैं। ठीक है, डिसेंडेंट गलत लिखा हुआ है, डेलिबरेटली कंफ्यूज कर रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, इंडियन क्रिश्चियन दैट्स इट। ठीक है, ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में लक्ष्मीकांत ने कई जगह पे गलती किया है। ठीक है,
और इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। दिस हैज एक्सटेंडेड, सेपरेट इलेक्ट्रोड गॉट एक्सटेंडेड, ओके। एनीथिंग एल्स हैपन इन दिस? प्रोविंसेस कैसा था अभी भी? प्रोविंसेस वाज यूनिकैमरल, सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी थी, अभी नहीं हुआ है, 35 में होगा वो, ठीक है। एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। एग्जीक्यूटिव में भी चेंजेस क्या हुए हैं देखो, ओके। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चेंजेस हुए? एक ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ, जो आज भी है, ठीक है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर आज भी है ऑफिस, हाँ, ठीक है, फॉर इंडियन, फॉर इंडिया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। कहाँ बनाया है ये? लंदन में। दिस हैज क्रिएटेड इन लंदन। ये ऑफिस का ड्यूरेशन कितना है? 6 years। 6 years का ड्यूरेशन है ये ऑफिस का, ठीक है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी ड्यूटी क्या है? बनाने का मतलब रीजन क्या है? ड्यूटी, व्हाट इज द ड्यूटी? कुछ एक्टिविटी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, एक्टिविटी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू देम, एंड it is the duty of high commissioner to look after the trade, look after the trade of Indian trade or trade of India in Europe। मतलब इंडिया कितना ट्रेड कर रहा है यूरोप में, ठीक है, वो देखना है। एनी कंफ्यूजन? नो। ठीक है, this is one more important element that has been added, okay. Now secretary of state to be paid, this person, the secretary of state that is there, okay, he will be paid by British exchequer, exchequer, ठीक है, ब्रिटिश के पैसे से अब इसे पैसा मिलेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। Any confusion on this? No confusion? किसमें? हाई कमिश्नर में। दोनों भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इंडियंस नहीं हो सकते, वहां भी इंडियंस थे ना, मोस्टली इंडियन भी वहाँ हो सकता है हाई कमिश्नर ऑफिस में। वो ट्रेड ही देख रहा है अभी, रेवेन्यू कितना फ्लो इनफ्लो है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड वाज अ मेजर डिस्प्यूट। प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया बिकम्स अ इंपोर्ट फॉर कंट्री, तो इंपोर्ट्स अ गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड और फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन एंड टू सप्लाई द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, यही काम था। तो वो उसमें क्या हो रहा था कि एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ, वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, आर्बिट्रेशन इम्पोर्ट ड्यूटी। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई था। फिनिश गुड जो थे ब्रिटेन के, मैनचेस्टर, यू नो मैनचेस्टर प्लेस है वहाँ, इसका नाम है, ठीक है, लिवरपूल एंड मैनचेस्टर दोनों है, दोनों टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ओके। सो दोनों का फिनिश गुड जो ब्रिटेन का था वो बेसिकली वहाँ पे एज अ बहुत ही कम इम्पोर्ट ड्यूटी में या नेग्लिजिबल इम्पोर्ट ड्यूटी में देते थे, तो इट बिकम्स वेरी कम्पिटेटिव, वेरी चीप। इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है तो चीप तो ऐसे ही हो जाएगा वो, ठीक। सो दिस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, रीड हिस्ट्री। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया लोगों ने,
तो उसके लिए हाई कमिश्नर को स्टैब्लिश किया, तो लुक आफ्टर दैट रेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, आर्बिट्रेशन ना हो। ओके, यू गॉट इट? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस, एनीबडी? 1935 and 1947 will do tomorrow, ठीक है।